YouTube channel, and today we will read about the poem Aunt Jennifer's Tigers from the book Flamingo, class 12th. Aunt Jennifer's Tiger. It is written by Adrian Rich. This poem highlights the plight of the women like Aunt Jennifer's in a male-dominated society. This poem was written in 1951, and this was a time when women were not given the equal opportunities to go outside, to work outside, to educate themselves, even in Western countries. So at the time, Adrian Rich, she was a feminist and she used to raise voice against women inequalities, gender discrimination. और यही सब discrimination देखकर एड्रियन रीच ने इस poem को लिखा है. Now about the poet. Adrian Rich, she was born in 1929 in Baltimore, Maryland, which is in USA. She is widely known for her involvement in contemporary women movement as a poet and as a theorist. She has published 19 volumes of poetry. उन्होंने poetry पे 19 books लिखी हैं, 3 collections of essays और 3 book उन्होंने essays पे लिखी हैं and other writings. A strong resistance to racism and militarism echoes through her work. यानी उनकी जो वर्क्स हैं उनमें काफी स्ट्रॉन्ग एक तरह से विरोध की गूंज दिखाई पड़ती है रेसिज्म के खिलाफ और ये जो एक तरह से मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है उसके खिलाफ. The poem Aunt Jennifer's Tigers addresses the constraints of married life a woman experiences. तो यानी ये जो पोएम है आंट जेनिफर के टाइगर, ये एक्सप्रेस करती है एक मैरिड विमेन की शादी के बाद जो भी चैलेंजेस को फेस करती है उसके बारे में. सो बिफोर यू रीड, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू? ये जो पोएम का टाइटल है आपको क्या सजेस्ट करता है? आर यू रिमाइंडेड ऑफ अदर पोएम्स इन टाइगर्स? So let's see. Now before going through the poem, let's have a look over the glossary. This poem is written in 3 quatrains. Quatrains means 4-line stanzas. So in total it is written in 12 lines and it has a perfect rhyming scheme. AA, BB, CC, DD, etc. I will tell you in detail how it forms. The first stanza highlights the aunt's fear, and the second stanza it highlights the slavery of Aunt Jennifer, and in the last and concluding stanza, Aunt Jennifer's ordeals in life has been described by Adrian Rich. So come to the first stanza. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. In the very first stanza हम ये देखते हैं कि आंट जेनिफर जो है वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है और एम्ब्रॉयडरी करते हुए वो टाइगर्स का उसमें जो है वो एम्ब्रॉयडरी बना रही है. और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन रेज होगा इन द माइंड ऑफ द रीडर्स कि व्हाई आंट जेनिफर हैज सेलेक्टेड टू एम्ब्रॉयडर द टाइगर्स ओनली. एक्चुअली टाइगर्स इस पोएम में जो है दे आर सिंबॉलिक ऑफ द स्ट्रेंथ, पावर, फियरलेसनेस एंड फ्रीडम ऑफ स्पिरिट, यानी जो हमारी स्पिरिट है उसकी फ्रीडम को सिंबलाइज करता है. After her marriage, Aunt Jennifer has not experienced pleasant moments in her life, and that's why she wants to come out of that life. She is feeling that as if she has been slaved by the uncle, by her husband. तो इसलिए वो जो है वो अपनी आज़ादी को ढूंढ रही है और इसके लिए उन्होंने एक रास्ता अप्लाई किया है एम्ब्रॉयडरी के थ्रू, जिसमें वो टाइगर्स को एम्ब्रॉयडर कर रही है और टाइगर की तरह मीन्स हियर शी वांट्स टू एक्सप्रेस हर सप्रेस्ड डिजायर टू बी फ्री. तो इसीलिए उन्होंने टाइगर्स को सेलेक्ट किया है, वो टाइगर का ही एम्ब्रॉयडरी कर रही है. सो आंट जेनिफर्स टाइगर्स बिकॉज दे हैव बीन क्रिएटेड बाय आंट जेनिफर्स एंड दे सीन prance across a screen. prance का मीनिंग होता है jump happily, खुशी से jump करना. Because the tiger they have a main characteristics of walking majestically and in a happy manner, fearlessly, किसी से भी बिना डरे वो चलते हैं. तो in the similar manner उसी natural way में उन्होंने टाइगर्स को उसमें पैनल में अपने एम्ब्रॉयडर किया है, जिसमें वो दिख रहे हैं कि prance across a screen. तो screen ही refers to the जो उनका वो फ्रेमवर्क है जिस कपड़े के थ्रू बना रहे हैं. तो स्क्रीन से ऐसा लगता है मानो टाइगर्स जो है दे आर अबाउट टू जंप ओवर द ऑनलुकर्स, देखने वालों के लिए.
तो आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन। आंट जेनिफर ने जो टाइगर बनाए हैं वो ऐसे लगते हैं एज इफ दे आर अबाउट टू जंप आउट ऑफ द स्क्रीन। Bright topaz denizens of world of green. Bright topaz here is symbolic of bright yellowish brown colors of tiger skin. क्योंकि टाइगर की जो स्किन होती है वो टोपाज इज अ वेरी प्रेशियस जेम, जो कि हम रिंग में डाल के पुखराज की अंगूठी जो हम पहनते हैं, इट्स अ वेरी प्रेशियस जेम। तो वो जो कलर होता है दैट इज द नेचुरल कलर ऑफ टाइगर स्किन। इसीलिए आंट जेनिफर ने जो वूल, जिस ऊन से वो टाइगर को बना रही हैं, उसका जो कलर है वो भी ब्राइट टोपाज यानी पुखराज, उसके जैसा उन्होंने कलर चूज किया है बिकॉज इट इज द नेचुरल कलर ऑफ द टाइगर स्किन। तो जस्ट टू शो देम लाइव, उनको बिल्कुल जीवंत दिखाने के लिए। तो ब्राइट टोपाज डेनिजेंस नेटिव ऑफ सम प्लेस, किसी जगह के रहने वाले, किस जगह के, ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन ही रेफर्स टू द फॉरेस्ट। और ग्रीन यहाँ पे जो कलर है दैट इज ऑल्सो द सिंबॉलिक ऑफ फ्रेशनेस, रिचनेस एंड ग्रीनरी। तो मीनिंग क्या है, जो टाइगर्स हैं that has been selected by Aunt Jennifer, they live in the rich world which is forest and they are enjoying their freedom. On the other side, Aunt Jennifer is not enjoying her freedom when she is living in her own house under the terror of her husband. So she desires to lead a similar kind of life that is led by the tiger in the forest, in the natural surrounding. So they do not fear the man beneath the tiger. और जब उन्होंने इन टाइगर्स को पैनल में एम्ब्रॉयडर किया है तो टाइगर की एक एक जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो उनकी विशेषताएं होती है, उनका आंट जेनिफर ने कंप्लीटली टेकन केयर ऑफ। कैसे? दे डू नॉट फियर, दे रेफर्स टू द टाइगर्स। तो टाइगर्स जो हैं दे डू नॉट फियर, वो नहीं डरते हैं। द मैन, यहाँ पे आंट जेनिफर ने उसी पैनल में एक पेड़ के नीचे द मैन, कुछ लोगों को भी खड़े हुए दिखाया है। तो यहाँ पे दे रेफर्स टू टाइगर्स एंड मैन यहाँ पे कौन हो सकते हैं फॉरेस्ट में? हंटर्स जो कि टाइगर्स का शिकार करने के लिए जाते हैं। बट ऑन द अदर साइड द टाइगर्स दे डोंट हैव एनी फियर ऑफ द हंटर्स हु आर शोन स्टैंडिंग अंडर द ट्री इन द पैनल। तो टाइगर्स को बिल्कुल भी डर नहीं लगता, दे आर फेरोशियस, दे आर फियरलेस, वो बिल्कुल निडर हैं, उन्हें इवन हंटर्स का भी डर नहीं लगता है। तो fear the man beneath the tree that has also been embroidered by the ant, and ant has also shown the hunters standing under the tree. यहाँ पे एक सिमिलरिटी को भी शो किया गया है, जैसे कि टाइगर्स का हंट किया जाता है या एनिमल्स का हंट किया जाता है फॉरेस्ट में। In the similar way, Aunt Jennifer has also been hunted by the uncle after her married life because her freedom has been hunted. उसकी जो फ्रीडम है उसका शिकार कर लिया गया है और आंट जेनिफर इज नॉट एंजॉइंग दैट प्लेजेंट मोमेंट, वो उन प्लेजेंट मोमेंट्स को एंजॉय नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पे एक हंट जो है, शिकार जो है, उसका भी एक आइडिया इसमें शो किया गया है। द पेस एंड स्लीक शिवलरिक एंड सर्टेनिटी। नाउ बहुत ही ब्यूटीफुल उनकी जो एक एडजेक्टिव्स उन्होंने यूज किए, स्लीक, शिवलरिक, सर्टेनिटी। स्लीक होता है वेरी मेजेस्टिक मैनर, बहुत ही शानदार, महाराजाओं की तरह से। तो व्हेन द टाइगर्स वॉक इन forest, when they jump happily and fearlessly in the forest, at the time they walk in a very majestic manner, in a very splendid manner, in a sleek manner. And chivalric, actually chivalric यहाँ पे it is taken out of the persons who used to be very brave knights जो होते थे। तो chivalric उन सरदारों के लिए, उन लोगों के लिए यूज किया जाता था जो एक रिस्पेक्ट देते थे to all the poor, to the ladies, to everyone। तो ये वर्ड वहां से लिया गया है। तो मीनिंग क्या है कि टाइगर्स दे आर ऑल्सो शिवलरिक, दे ऑल्सो रिस्पेक्ट द लॉ ऑफ द नेचर। जैसे उनको नेचर में बनाया है अकॉर्डिंगली दे वॉक एंड दे रिस्पेक्ट ऑल द अदर क्रिएचर्स, वो भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आंट जेनिफर ने शिवलरिक वर्ड यूज किया है बिकॉज शी ऑल्सो डिजायर्स टू हैव द सेम क्वालिटी इन दिस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, बट शी इज नॉट फाइंडिंग दैट क्वालिटी। तो इसीलिए उन्होंने अपनी सप्रेस्ड फीलिंग के थ्रू टाइगर्स में ये उनके नेचुरल उसको शो किया है कि जो टाइगर्स हैं वो स्लीकली वॉक करते हैं, वो शिवलरिक हैं, ब्रेव हैं, करेजियस हैं, एंड सर्टेनिटी दे वॉक विद फुल कॉन्फिडेंस। दीज आर द ब्यूटीफुल and natural qualities of the tigers which Aunt Jennifer expects to have in this male dominated society. Actually Aunt Jennifer जो है वो ये जो male dominated society है,
जो लेडीज को शादी के बाद जो एक तरह से उनको कंट्रोल करते हैं, डोमिनेट करते हैं और अपने अकॉर्डिंग उनको मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर करते हैं, उससे परेशान होकर उन्होंने एक एस्केपिज्म का रास्ता अपनाया है। एंड व्हाट इज दैट वे ऑफ एस्केप? दैट इज थ्रू द आर्ट। आन जेनिफर इज अ ग्रेट आर्टिस्ट और वो आर्ट के थ्रू अपने इन दुखों को भुलाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए उन्होंने इस चीज का सहारा लिया है। सो क्लियर? सो इसमें हमने देखा कि आन जेनिफर के फियर, जो उनका डर है, वो एक तरह से उस चीज को हाईलाइट किया है। उस डर को वो मीन्स एक तरह से लेट गो करती हैं बाय एम्ब्रॉयडरिंग द टाइगर्स इन द पैनल। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. This massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. First of all, I'll tell you poetic devices used in this stanza. Fingers fluttering में again alliteration is there because the same consonant sound is being repeated, F and F. Now come to the next one. A massive weight of Uncle's wedding band sits heavily. A massive weight of Uncle. It is symbolic of the oppression of women by custom and male authority. Otherwise, जो massive यानी huge, एक भारी weight, ठीक है, तो उसको सिंबॉलिक बताया। Sits heavily, अब बोझ बैठता है just like a person, तो personification is here. Now come to the explanation. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool. As I told you that Aunt Jennifer is embroidering with the help of the wool and she is making the pattern of the tigers. तो जिस ऊन को उन्होंने, जो ब्राइट टोपाज कलर की जो ऊन उन्होंने यूज की है, उससे जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं तो क्या होता है? She is holding the needle which is made of ivory. Ivory refers to the elephant tusk. जो इसमें एक तरह से और भी दिखा है, फिर से वही हंटिंग का एक सिंबॉलिक मीनिंग है कि आफ्टर द टाइगर्स एंड द एलिफेंट्स इन द फॉरेस्ट दे आर बीइंग हंट बाय द हंटर्स। तो एलिफेंट्स के जो टस्क है, दे आर यूज्ड टू मेक डिफरेंट मटेरियल्स या आर्टिकल्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है। और उसी एलिफेंट टस्क की हाथी दांत की एक मतलब सुई बनी हुई है और उस निडल से ही वो उस वूल को खींच रही है। लेकिन वो क्या रहा है यहाँ पे? आंट जेनिफर्स फिंगर्स, आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं फ्लटरिंग, वो मीन्स दे आर ट्रेमलिंग ड्यू टू द लैक ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, यानी उनकी उंगलियों में ताकत नहीं है, वो एक तरह से कांप रही है। थ्रू हर वुल, उस वुल में से निडल को खींचते हुए, इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल, आइवरी निडल को भी वो वुल में से खींच नहीं पा रही है, उसको पैटर्न को बनाने में उन्हें दिक्कत हो रही है। तो क्या एक तो वुल जो है, वुल इज वेरी लाइट, बहुत ही हल्की होती है, इट्स नॉट सो हैवी नहीं होती है। ऑन द अदर साइड आइवरी नीडल क्या है यहाँ पे? एज आई टोल्ड यू, इट इज सिंबॉलिक ऑफ द मीन्स एलिफेंट टस्क, जिसको हंट करके उसके टस्क से ये चीज बनाई गई है। तो मीनिंग क्या है कि जिस तरह से किसी का हंट, शिकार कर दिया जाता है, व्हेन आफ्टर दैट द सेम थिंग इज बीइंग यूज्ड बाय अ सेम पर्सन हु इज इन रियल लाइफ इज बीइंग हंटेड, जैसे कि आंट जेनिफर का भी एक तरह से हंट किया है, उनके भी फ्रीडम का शिकार किया गया है, तो उनके लिए इतनी हल्की सी जो वुल है और जो ये निडल जो इतनी छोटी है, ये इतनी हैवी नहीं है, बट आंट जेनिफर फील्स it very hard. She is facing difficult in pulling the ivory needle through the wool. क्यों? Means she is mentally and physically terrorized by the male dominated society, in which we can say that her husband has terrorized her so much. The massive weight of Uncle's wedding band. The massive is very huge, बहुत ज्यादा, weight यानी भार, तो बहुत ज्यादा जो भार वो फील कर रही है, किस चीज का फील कर रही है? Uncle's wedding band. Band here refers to anything in Indian society. If we say a woman is being born, यानी उसको क्या पहनाया जाता है? At the time of marriage उनको चूड़ियां पहनाई जाती हैं। In the similar way, क्रिश्चियन उसमें क्या है? बैंड, वो रिंग हो सकती है। तो जो रिंग, शादी की जो रिंग होती है, that is symbolic of all the responsibilities that a woman has to shoulder after her marriage. तो वो रिंग इतनी हैवी नहीं है, लेकिन उस रिंग के साथ शादी के बाद जो एक मैरिड वुमेन की लाइफ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है फ्रॉम द साइड ऑफ द सोसाइटी, वो उनको शोल्डर करना बहुत हैवी हो जाता है, और वो भी तब जब वो काफी अनप्लेजेंट मोमेंट के साथ उनको शोल्डर किया जाता है, अकेले ही जब उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे अंकल की वेडिंग यानी मैरिज बैंड, अंकल की शादी पे पहनाई गई रिंग इतनी हैवी नहीं है, बट उस रिंग के साथ जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ने आंट जेनिफर के ऊपर जो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाद दी हैं वेडिंग बैंड के नाम पे, वो एक्चुअली उसका वेट इज वेरी हैवी टू बी कैरिड बाय आंट जेनिफर।
Now come to the third stanza, the last one. So when aunt is dead, her terrified hands will lie. She still ringed with ordeal she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. So इसमें क्या है? Irony is there. What is irony? When the words convey a different meaning but it has a profound meaning. उसका एक बहुत ही गहरा मीनिंग होता है जो कि शब्द जो बता रहे हैं उससे बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन में है. तो यहाँ पे व्हेन आंट इज डेड, इमेजिन, मतलब यहाँ पे क्या इमेजिनेशन है कि क्लाइमेक्स ऑफ द, हम कहेंगे कि टॉर्चर का क्लाइमेक्स यहाँ पे शो किया है कि जब आंट जेनिफर विल डाई, जब वो मर जाएंगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई. हर टेरिफाइड हैंड्स को टेरिफाई बताया है. हियर ट्रांसफर्ड एपिथेट इज देयर, क्योंकि आंट जेनिफर का जो बॉडी में जो टेरर था, जो उनके दिमाग में टेरर था, नाउ इट हैज बीन ट्रांसफर टू हर हैंड्स. वो उनके हाथों में है कि जब वो मर जाएंगी तो उनके हाथों के ऊपर उनके टेरर का वो सिंबल अभी भी रहेगा. और वो सिंबल क्या होगा? एज इट इज कस्टमरी कि एक जब मैरिड वुमेन जब मरती है तो उनको पूरे मतलब एक तरह से उनके साजो श्रृंगार के साथ उनको क्रीमेट किया जाता है या उनको बरी किया जाता है. तो मरने के बाद भी आंट जेनिफर के हाथ जो है टेरराइज रहेंगे, टेरिफाइड रहेंगे, डरे रहेंगे. क्यों रहेंगे? क्योंकि उनके फिंगर में, उनके हाथों की जो फिंगर है उसमें उनकी शादी की रिंग अभी भी रहेगी. वो उस रिंग के साथ एज अ मैरिड वुमेन सुहागन की तरह से उनको दफन किया जाएगा. तो स्टिल रिंग्ड विद ऑडियंस. तो रिंग का मीनिंग यहाँ पे क्या है? रिंग मीन्स सराउंडेड, यानी वो घिरी रहेंगी अभी भी. शी वुड नॉट बी फ्रीड, उनको फ्री नहीं किया जाएगा. शी विल नॉट बी एबल टू अचीव हर इंडिविजुअल आइडेंटिटी इवन आफ्टर हर डेथ बिकॉज शी वुड बी बरीड बाय द नेम ऑफ द अंकल. तो रिंग विद ऑडियंस, और वो जो रिंग है यहाँ पे, रिंग में जो है हेयर पोएटिक डिवाइसेस पन स्लेश अलंकार जिसको बोलते हैं पन. क्यों? रिंग एक फिजिकल रिंग हो गई जो उनके हाथ में पहनी हुई है, जो अंकल ने मैरिज के टाइम उन्हें पहनी थी. और रिंग का दूसरा मीनिंग होता है एज अ वर्ब के फॉर्म में सराउंडेड बाय. ठीक है, कि वो रिंग एक सर्कल्ड अनसर्कल्ड रहेंगी, घिरी रहेंगी. उस रिंग को पहनने की वजह से, रिंग भी घिरी हुई होती है यानी उंगली को घिरे हुए होती है. तो इस तरह से क्या है कि वो घिरी रहेंगी और उनकी अपनी खुद की पहचान उनके मरने के बाद भी उन्हें नहीं मिलेगी. और रिंग विद ऑडियंस, किससे रिंग रहेंगी? सराउंडेड विद द ऑडियंस, द अनप्लेजेंट मोमेंट दैट शी हैड बीन फेसिंग थ्रू आउट हर लाइफ आफ्टर मैरिज. उससे वो घिरी रहेंगी और उसका सिंबल वो रिंग होगी. शी वाज मास्टर्ड बाय. यहाँ पे नोटिस या टेक केयर ऑफ दिस वर्ड मास्टर्ड बाय. मास्टर का मीनिंग यहाँ पे क्या है? कंट्रोल्ड बाय. अगेन इस लास्ट स्टेंजा में आंट जेनिफर की लाइफ में, और टाइगर्स, वो टाइगर दैट हैज बीन हंटेड, जिनको हंट कर दिया गया है और फिर उसके बाद उन्हें जू या सर्कस में भेज दिया गया है. तो जब सर्कस में भेजते हैं तो टाइगर्स को क्या किया जाता है? उनको कंट्रोल किया जाता है, उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, मतलब उनको विप, दे आर विप्ड, उनको चाबुक मारे जाते हैं और उनको सर्कस में अपने अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस करवाने के लिए उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, बहुत ही टॉर्चरस वे से उनको मार मार के. तो इन सिमिलर वे शादी के बाद आंट जेनिफर को भी काफी इंस्ट्रक्शंस दी गई. उनको विप्ड यानी एक तरह से ऑन द नेम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नामक चाबुक मारे गए. So here is a similarity in between the Aunt Jennifer's life and the tigers who earlier used to walk freely in the natural surrounding in the forest. But now after the hunt के बाद they are also being controlled by the ringmaster in the circus. So the tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. Again prancing and proud. There is what? Alliteration, as there is a repetition of P and P. So लेकिन क्या है? जिस तरह से आंट जेनिफर की डेथ के बाद वो भी टेरराइज्ड रहेंगी, वो भी उसी के साथ रहेंगी. इन सिमिलर वे जो आंट जेनिफर ने पैनल में टाइगर्स की एम्ब्रॉयडरी की है, वो हमेशा हंड्रेड्स ऑफ इयर्स तक वहीं पे मतलब वो रहेंगे. बिकॉज आर्ट जो है, कला जो है, आर्ट एंड लिटरेचर, दे आर क्या है? दे आर इमोर्टल, दे विल नेवर पेरिश. और जो पोस्टेरिटी, जो कमिंग जनरेशंस आएंगी, उनको ये पता चलेगा कि दीज टाइगर्स आर क्रिएटेड बाय आंट जेनिफर्स, वो उनकी आंट जेनिफर ने बनाए थे. ठीक है, तो इस तरह से जो आर्ट में जो टाइगर्स है वो भी एक तरह से क्या है? दे हैव आल्सो बीन एनस्लेव्ड. उस फ्रेम के विद इन उन टाइगर्स को एनस्लेव कर दिया है. दे वुड आल्सो बी देयर इवन इन द
पैनल, तो द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, जो आंट जेनिफर ने बनाए हैं पैनल में टाइगर्स, विल गो ऑन prancing. They will keep prancing in the similar way as they have been created by the Aunt Jennifer, and they would be showing that they are proud and they are unafraid, but after the hunt they have become fearful of the means this society. तो यहाँ पे क्या है, एक तरह से it is a bitter truth, एक कड़वी सच्चाई बताई है कि आर्ट जो है, आर्ट इज इमोर्टल, लेकिन आर्ट में कोई चीज हम प्रिजर्व करके रखते हैं, तो वही जो टाइगर जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या आंट जेनिफर में इसमें दिखाई है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स इस पैनल में ही रुक जाएगी हमेशा, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स तक ये पैनल वहीं पे रहेगा, और आने वाली पोस्टेरिटी, कमिंग जनरेशन विल हैव ए ग्लेंस ओवर देम एंड दे विल नो अबाउट द आंट जेनिफर, विल नो अबाउट द क्रिएशन, कि कितना ब्यूटीफुल क्रिएशन उन्होंने टाइगर की फॉर्म में बनाया है, जो हमेशा इसी तरह से करते रहेंगे. इसका एक और भी सिंबॉलिक मीनिंग है कि ऐसी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जिसमें विमेन आर बीइंग टॉर्चर्ड, मीन्स उनको टॉर्चर किया जाता है, उनको सारे मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नाम पे, जो भी सोशल कस्टम्स के नाम पे, या रूल्स एंड रेगुलेशंस के नाम पे, या मैरिज कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे जो उनसे काम करवाए जाते हैं, तो उनके डेथ के बाद भी ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी विल नॉट इम्प्रूव दे रूल्स, ये अपने रूल्स को बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं करेगी. ये मेल मेंबर्स, ये जो जहां पे मेल चेविनिज्म जहां पे होता है, दीज मैन वुड गो ऑन, दूसरी तरफ से ये कहेंगे कीप ट्रीटिंग द वीमेन इन द सेम मैनर, इन ए प्राउड मैनर, अनअफ्रेड मैनर में. ये भी इसका एक सिंबॉलिक है. तो लास्ट में टाइगर जो है वो बताया है कि एक मैन की क्वालिटी तो क्या होनी चाहिए, जो कि उन्होंने फर्स्ट एंजा में बताया, दे मस्ट बी वॉकिंग इन अ स्लीक मैनर, ये एक बहुत ही सिविलाइज्ड मैन की या टाइगर की जो है वो क्वालिटीज होती है. दे मस्ट बी ब्रेव, करेजियस, दे मस्ट रिस्पेक्ट द विमेन, दे मस्ट बी वेरी कॉन्फिडेंट, है ना. लेकिन इन एंड में क्या बोला है कि वही आदमी इन लेडीज के, या जो भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में जो लेडीज को इस तरह से ट्रीट किया जाता है, उनकी डेथ के बाद में दे वुड कीप treating the lady in the similar way, their life will not be affected even by the death of the women. Now I want to tell you something. एक तो इसमें जो है rent with audience, I have already told you there is an image, and image क्या होता है, मैं एक तरह से play of words, यानी शब्दों के द्वारा जो पिक्चर बनाया जाता है. तो इसमें क्या इमेज है rent with audience में, it is the expression of struggles of Aunt Jennifer. Aunt Jennifer की जो struggle है उनको शो किया है, और जो रेपुटेशन ऑफ आंट जेनिफर इन टाइगर से, ये भी एक सिंबॉलिक है. ये क्या सिंबॉलिक है, आंट जेनिफर वाज द ऑप्रेस्ड वन, है ना, एंड टाइगर वर द ऑप्रेसर्स, टाइगर ही रेफर्स टू मैन के लिए, तो वो भी सिंबॉलिक है ऑफ द ऑप्रेस इन द ऑप्रेसर. तो दीज वर ऑल, एंड मेनली जो टाइगर का यहाँ पे आंट जेनिफर ने जो एक तरह से क्रिएट किया है, टाइगर हियर इज सिंबॉलिक ऑफ द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम विच इज सॉट बाय आंट जेनिफर, लेकिन वो अपनी लाइफ में उस फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पाई. So this is a very beautiful poem in which the central figure जो है in this poem is the Aunt Jennifer, and she is totally victimized by the physically absent, I should say, uncle who is presented by his wedding band. ठीक है, so this was all in this poem, and I wanted to tell you about the rhyme scheme, as this poem has a very perfect rhyme scheme, and the rhyme scheme जो है वो कैसे निकालते हैं, by taking the last words of the each and every line. जैसे कि हम देखते हैं फर्स्ट लाइन में screen and green, AA, then tree certainty, BB. Now come to the second stanza, wool and pull, CC, hand and band and hand, DD, lie and buy, EE, and made and afraid, FF. So this is a perfect rhyme scheme. तो इसमें ये rhyme scheme है, और ये poem कोई एक simple, I also want to tell you in the end कि आंट जेनिफर को यहाँ पे एडन रिच ने इस तरह से एड्रेस किया है जैसे आंट जेनिफर हम सबकी नोन है. उन्होंने ये नहीं बोला कि माई आंट जेनिफर, मेरी आंट जेनिफर चाची जो है, बट उन्होंने रीडर को ये बताया है एज इफ आंट इज ऑफ एवरीबॉडीज आंट, और ये आंट जेनिफर के तौर पे आंट जेनिफर इज सिंबॉलिक ऑफ ऑल द वुमेन इन द सोसाइटी, इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हु आर इल ट्रीटेड बाय द मेल. तो ये उनको सिंबलाइज करती हैं. सो नाउ I would like to explain the important questions that would come in exams. First question is, how do denizens and chivalric add to our understanding of tiger's attitude? जब first stanza में denizens inhabitants या native
शिवलरिक यानी ब्रेव। ये जो वर्ड्स ये इस टाइगर के एटीट्यूड के बारे में हमें क्या बताता है, मतलब टाइगर के बारे में डेनिजेंस और शिवलरिक वर्ड यूज क्यों किए गए हैं। डेनिजेंस रेफर्स टू बिकॉज द टाइगर दे आर द नेटिव ऑफ द green world which is a forest, and they are very brave, they don't have any fear of any person. That's why it increases our understanding that tigers, they are the natural inhabitants of the forest, they live in forest and they are very brave and means courageous one. Now come to the second question. What do you think Aunt Jennifer's hands are fluttering through her wool in the second stanza? आपको क्या लगता है कि आंट जेनिफर के जो हाथ हैं वो सेकंड स्टेंजा में क्यों कांपते हैं जब वो बना रही हैं ऊन से और निडल से? Why is she finding the needle so hard to pull? निडल को खींचने में उन्हें इतना मुश्किल क्यों लग रहा है? Actually the answer is कि Aunt Jennifer is very depressed and she is not mentally confident. So that's why out of terror her hands are not able to pull the needle through the wool. Come to the third question. What is suggested by the image massive weight of uncle's wedding band? So as I told you, massive weight of uncle's wedding band, he refers to the responsibilities that occurs, that has come after the marriage of Aunt Jennifer. So ये जो image है ये हमें ये बताती है कि Aunt Jennifer के हाथों में जो वेडिंग बैंड है अंकल ने जो उन्हें मैरिज के टाइम बनाया था उसका वेट उनके लिए बहुत हैवी है, बिकॉज द responsibilities that has come along with uncle's wedding band are so heavy to carry on by the Aunt Jennifer. Now come to the fourth question. Of what and of whom is Aunt Jennifer terrified with in the third stanza? तीसरे स्टेंजा में Aunt Jennifer of what, किस चीज से, and of whom और किससे डरी हुई है? तो किस चीज से, of what? She Aunt Jennifer is terrified of the ordeals and of whom यानी the ordeals in which she has been mastered by her husband, जो कि यहाँ पे अंकल के तौर पे उनको एड्रेस किया है। तो वो ऑडियल से एक तरह से इतनी डरी हुई हैं अनप्लेजेंट मोमेंट ऑफ हर लाइफ से और अपने हस्बैंड से। नाउ कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन. What are the ordeals Aunt Jennifer is surrounded by? Why is it significant that the poet uses the word ring? अब कह रहे कि वो कौन से ऑडियल्स हैं जिनसे आंट जेनिफर घिरी हुई हैं और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि पोएट ने जो है एड्रिन रीच ने रिंग वर्ड यूज किया है। एक्चुअली रिंग का एज ए टोल्ड यू दो वर्ड इसके यूज किए हैं। तो रिंग जो शादी की रिंग उनको पहनाई गई है, एक रिंग का मीनिंग यहाँ पे है कि सराउंडेड बाय। तो यहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एज दिस रिंग इट्स a symbolic of the we must say that married responsibilities, unpleasant moments that Aunt Jennifer had gone through, तो उस चीज को शो किया गया है। and the ordeals refers to the unpleasant and very torturous kind of acts and chores that she had to go through after her married life. So what are the meanings of the word ringed in the poem? I have already told you, ringed का meaning surrounded by और मीन्स एक तरह से encircled by कि उनको घेर लिया गया है। Come to the next question. What do you think Aunt Jennifer created animals that are so different from her own character? This question is very important and almost it comes in each and every exam. आपके बोर्ड एग्जाम में तो ये पक्का ही आता है। आपको क्यों लगता है कि आंट जेनिफर ने ऐसे एनिमल्स यानी टाइगर्स को क्रिएट किया, एम्ब्रॉयडर किया जो उसके कैरेक्टर से बिल्कुल डिफरेंट है? तो इसका एक तो है व्हाट माइट द पोएट बी सजेस्टिंग थ्रू दिस डिफरेंस? इस डिफरेंस के थ्रू पोएट क्या बताना चाहती है? तो यहाँ पे क्या है, आंट जेनिफर और टाइगर में कोई भी मेन सिमिलरिटी नहीं है, उसकी बजाय कि जब टाइगर्स को हंट किया जाए तो उसके बाद की उसकी जो कंडीशन और आंट की जो है। बिफोर दैट टाइगर्स आर वेरी ब्रेव, they are very majestic, but on the other side Aunt Jennifer is not so brave, she is timid, वो हमेशा डरी रहती हैं, terrorized रहती हैं, and the tigers they are fearless, जबकि Aunt is fearful, वो बिल्कुल डरी रहती हैं। तो बिल्कुल एक complete contrast is there in the life of the Aunt Jennifer and tiger। लेकिन क्वेश्चन आता है कि Aunt Jennifer ने वही टाइगर क्यों क्रिएट किए जो उनके कैरेक्टर से बिल्कुल डिफरेंट है? तो इसका आंसर एक बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर है कि व्हेन वी आर नॉट एबल टू जस्ट एक तरह से एंजॉय द लाइफ दैट वी वांट टू एंजॉय, व्हाट डू वी डू? नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, वीक पर्संस, हम अपना कोई एक वे ऑफ एस्केप ढूंढते हैं। तो यहाँ पे आंट जेनिफर जो है शी वांटेड टू लीड द लाइफ फ्री, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड जस्ट लाइक द टाइगर्स, जैसे कि टाइगर जंगल में एंजॉय करते हैं। तो आंट जेनिफर्स की जो सप्रेस्ड फीलिंग है, by embroidering the tigers in the panel, she has
expressed a desire to lead that much life, वैसी लाइफ उन्होंने जीने के लिए, इसलिए उन्होंने बिल्कुल अपने ऑपोजिट टाइगर्स को लिया, क्योंकि वो उनकी दबी हुई फीलिंग्स का एक तरह से एक्सप्रेशन है. Now, interpret the symbols found in the poem. There are so many symbols. Symbols क्या होते हैं, मीन्स जब भी कोई बहुत ही सिंपल वे में बट उसका कोई बहुत ही डीप मीनिंग निकलता है तो सिंबल की फॉर्म में है. तो एक तो खुद यहाँ पे टाइगर्स आर सिंबॉलिक, आई टोल्ड यू, एंड टाइगर्स आर सिंबॉलिक ऑफ टू थिंग्स. इसको मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को भी शो कर सकते हैं, एंड अनदर वन वाज इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ आंट जेनिफर सप्रेस्ड फीलिंग्स. ठीक है. अनदर वन जो है, इसमें सिंबल बहुत सारे हैं. ब्राइट टोपाज है, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन है, डेनिजन है. इन द सिमिलर वे मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड है, यहाँ भी सिंबल है जो कि मैंने पॉइंट के थ्रू आपको सारा बता दिया है. अनदर वन टेरिफाइड हैंड्स, इट ऑल्सो इज सिंबॉलिक ऑफ समथिंग रिंग्ड विद ऑडियल्स मास्टर्ड बाय. तो यहाँ पे सो मेनी इमेजेस. दिस पोएम इज कंप्लीटली फिल्ड विद अ लॉट ऑफ सिंबल्स. नाउ डू यू सिंपैथाइज विद आंट जेनिफर? क्या आपको आंट जेनिफर के साथ सिंपैथी होती है? यस, होती तो है. What is the attitude of the speaker towards Aunt Jennifer? Aunt Jennifer के प्रति स्पीकर जो है, स्पीकर who is a speaker? Adrian Rich. Adrian Rich जो पोएट है, उनका क्या एटीट्यूड है? Actually, she is sympathetic of Aunt Jennifer. That's why she has written this poem. On the other side, Adrian Rich wanted every woman to lead a life according to her own wish and desire. So, having this concept in her mind, she has also written this one. तो जो एडविन रीच है, उनका जो एक रवैया है या उनका एटीट्यूड जो आंट जेनिफर के प्रति है, वो सिंपैथी का तो है ही है साथ में, लेकिन उन्होंने बहुत सी डीप सी बातें जो बोली हैं इस पोएम के थ्रू, वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये भी कहते हैं कि वी शुड ऑल्सो रेज अ वॉइस अगेंस्ट सच सोशल कंस्ट्रेंट्स. So now notice the colors suggested in the poem. इस पोएम में बहुत सारे कलर्स यूज किए हैं. एक तो ब्राइट टोपाज कलर, येलोइश कलर को बोला है, वो किस चीज का है? ग्रीन वर्ड का यूज किया. तो बहुत सारे ऐसे कलर्स जो है वो यूज किए हैं. तो उनका मीनिंग मैंने बताया, जैसे ग्रीन जो है वो एक ताजगी का है, रिच लाइफ का है. इसी तरह से ब्राइट टोपाज जो था वो एक रिच मतलब जेम होता है, तो दैट इज द रिच एंड नेचुरल कलर ऑफ द टाइगर स्किन. तो ये सारे हैं. Now this was all in this poem, in this beautiful poem. Go through the poem, also read from your textbook and listen to it very carefully and try to get the profound meaning, images and symbols जो कि मैंने आपको बताए हैं. And if you have any doubt regarding the poem, so please drop your doubts in the comment box, and also do subscribe, like and share. Thank you.